Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to cover up the last chapter of ISC Microeconomics for class 12, which is forms of market. So this is going to be the conclusion video of our microeconomics series, and हमने सब कुछ ही cover up कर लिया है from demand till chapter 11, बस chapter 9 बाकी है. इस video में होते ही it is done. Now, before I begin, first of all, I would like to thank each one of you for showing constant support to my YouTube channel, for helping me grow this much. I am nothing without your love and support and without your blessings. So please keep sharing all your love. Share this channel as much as possible. It takes a lot of efforts to come teach everything in detail, and it is not possible without you guys. So thank you so much. If you are liking my content, then please do not forget to like, share, subscribe. And if you have any doubts, then please leave it down in the comment section below. I will definitely take it up. So without much ado, let's get started. Forms of market. ठीक है, चलो. Forms of market. Now, what is this chapter going to be about? It is about the categories of market. ठीक है, the market structure. यानी the types of market. कितने type के market structure है. थोड़ा सा theoretical chapter है, but then if you take up the board paper of last year and if you analyze it, you'll get to know that इस chapter में से बहुत सारे questions पूछे गए थे and perhaps एक case study भी आया था end में. So इसको ध्यान से समझिएगा. इस चैप्टर में बेसिकली आपको मीनिंग, फीचर्स, डायग्राम एंड फीचर्स के जो इंप्लीकेशन होते हैं हर एक मार्केट स्ट्रक्चर के, उसको कवर अप करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. दिस चैप्टर इज अबाउट द टाइप्स ऑफ मार्केट. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ मार्केट इज अबाउट द, आई वुड से, टाइप्स ऑफ मार्केट. टाइप्स और कैटेगरी ऑफ मार्केट, कि कितने कैटेगरी ऑफ मार्केट है. सो टू बिगिन विथ, वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द मार्केट का डेफिनेशन इटसेल्फ. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? क्या समझ में आता है आपको मार्केट से? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर बोले तो मार्केट पहले एक जगह हुआ करता था. इन दी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ओल्डर टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ मार्केट, where market used to be a place, a mandi, bazaar, hart, where buyers and sellers used to go, physically go, and there they used to trade, that is buy and sell goods and services. बट नाउ अगर मॉडर्न इकोनॉमी का बात करें, signifying market as a place would not be correct, because market is no more restricted to a physical place. Rather, you should say in modern language, market is a system, it is a setup, it is a mechanism. Mechanism का मतलब हो गया, it is an arrangement. ठीक है, it is a structure, arrangement, or it is an interaction between the buyers and sellers. So modern day का market is like, if I ask you what market is in modern day, तो you will say market is what market does. Market वही है जो market करता है. And market में कौन से दो activity होते हैं? That is buying and selling. So if buying and selling is being able to take place, whether the buyer or seller physically meets or not, चाहे buyer या seller एक दूसरे से मिले या ना मिले, अगर trading हो पा रहा है, अगर buying selling हो पा रहा है, that itself is your market. ठीक है. सो मॉडर्न डे मार्केट इज अ सिस्टम, इट्स अ सेटअप, इट्स एन अरेंजमेंट, इट्स अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच buyers and sellers are able to interact with one another. See what is written over here. The term market does not necessarily refer to a physical place, but rather to be a mechanism or arrangement. Mechanism और arrangement का मतलब हो गया एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सेटअप जिसमें buyers and sellers are able to interact. Communication is the key in the market. If interaction is taking place between buyers and sellers, that itself is a market. ठीक है. To exchange goods and services, that is to trade. Trade करने के लिए, buying selling करने के लिए. And market is a place where price and quantity are determined based on the supply and demand, जो हमने chapter 6 में भी किया था. That it is in the market, through the market forces of demand and supply, price and quantity is determined. Equilibrium price and equilibrium quantity. ठीक है. I hope that is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर. नाउ बिफोर आई गो अहेड, इफ यू आर वंडरिंग कि ये नोट्स कहां से मिलेंगे, उसके लिए आपको मेरे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर, डाउनलोड आर्यन ट्यूटोरियल, एंड if you are an iOS user, then I would advise you to download Class Plus app. क्या हो गया इसको? Just 1 second. There's an issue.
Yeah, so if you are an Android user, then you need to download Aryan Tutorial from your Play Store. And if you are an iOS or Apple user, then you can download Class Plus app and punch in my organization code, which is PLYMMV. Over there, this notes is launched as a paid course for price of 249 rupees. Both micro and macroeconomics is 249 each. आप प्लीज इसका लाभ उठाइए. This is one of the best notes. इसके बाद आपको अपना टेक्स्ट बुक का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा अश्योरेंस इस बात का. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर. व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर? नाउ मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हाउ वेल द मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ वेल द मार्केट इज सेट अप, कैसे मार्केट बना हुआ है. सो सी क्या लिखा हुआ है? मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट. दैट मींस हाउ वेल द मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फर्म्स, किस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है, द लेवल ऑफ कंपटीशन कितने हैं, and different market structure define how firms operate and compete. ठीक है, so it is on the basis of this market structure we will categorize each category of market. Either it is a competitive market or it is imperfect competition. Imperfect competition maybe it is monopoly or it is monopolistic or it is oligopoly market. ठीक है, we'll come to that each and every term. चलिए start करते हैं. Factors determining market form. Now अगर आपको factors समझ में आ गया ना, तो फैक्टर्स ही आपका पूरा फाउंडेशन बना देगा इस चैप्टर का. ठीक है, सो इसको ध्यान से समझिएगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मार्केट. सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के साथ. आप एक कॉपी ले लो, एक कॉपी में सेंटर में हर एक पॉइंट को लिखो नंबर एंड सेलर्स, एंड उसको जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं उसको डिवाइड करते जाइए अपने कॉपी में. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को आप बांट दो इनटू से सपोजिटली 6 कैटेगरीज. Either a market can have large number of buyers and sellers, or market can have few sellers, or market can have one seller, or market can have one buyer, or market can have two sellers, or market can have two buyers. Large number of buyers and sellers, single seller, few seller, single buyer, two sellers and two buyers. So उसके बेसिस पे अगर हम लोग उठाए तो जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे वो मार्केट या तो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, या तो फिर वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. अब आप पूछोगे कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक है? उसके लिए सेकंड पॉइंट का वेट करो. ठीक है, विल कम टू दैट. सो अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है तो या तो परफेक्ट कंपटीशन है या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. अगर फ्यू, बहुत कम सेलर्स है, देन दैट मार्केट इज ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट. ठीक है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट. अगर एक सेलर है तो दैट इज अ मोनोपोली मार्केट. अगर एक बायर है तो दैट इज अ मोनोप्सोनी मार्केट. मोनोप्सोनी, MONOPSONY. मोनोपोली इज MONOPPOLY. ठीक है, MONOPOLY, मोनोपोली. सिंगल बायर इज मोनोप्सोनी. अगर दो सेलर है तो दैट्स अ डुओपोली. दो सेलर डुओपोली, एंड दो बायर है तो डुओप्सोनी. ठीक है, सो वी हैव on the basis of the large number of on the basis of number of buyers and sellers, we either have large number of buyers sellers, few sellers, one seller, one buyer, two seller or two buyer. And large number of buyers and sellers के हिसाब से perfect competition, monopolistic competition. Few sellers के हिसाब से oligopolistic structure, single seller के हिसाब से monopoly, single buyer के हिसाब से monopsony, दो sellers के हिसाब से duopoly and दो buyer के हिसाब से duopsony. ठीक है, इतना गया आपके दिमाग में? आप पढ़ भी सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, मोनोपोली इज वन सेलर, ओलिगोपोली इज फ्यू सेलर, मोनोपोलिस्टिक इज मेनी सेलर, परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ठीक है, कमिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. किस टाइप का प्रोडक्ट है? अब नेचर ऑफ द प्रोडक्ट को मैं 3 कैटेगरी में तोड़ूंगा. या तो अ फर्म इज सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. इसको भी आप सेंटर में लिखे ऐसे 3 पार्ट में तोड़ के वैसे लिखिएगा. या तो फर्म इज सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, या तो फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, या तो फिर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट. होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, परफेक्ट आइडेंटिकल सब्सटीट्यूट, एकदम एक जैसे प्रोडक्ट. दे आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ वन अनदर, आइडेंटिकल. ठीक है, दैट इज होमोजीनियस. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आर ऑल्सो क्लोज सब्सटीट्यूट, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं, बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट. एब्सोल्यूट सब्सटीट्यूट्स नहीं है एक दूसरे के. अगर मैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट का बात करूं या होमोजीनियस प्रोडक्ट का बात करूं, सपोजिटली आपके पाड़ा में 4 किराने दुकान वाले हैं,
चारों जन गोविंद भोग चावल बेच रहे होंगे तो क्या उसमें क्वालिटी में कोई अंतर होगा? गोविंद भोग चावल में नहीं होगा ना. सो दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के कंपेयरिंग गोविंद भोग चावल विद बासमती चावल. नो नो नो, वहां पे क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट 4 डिफरेंट किराना दुकान, ग्रोसरी शॉप सेलिंग गोविंद भोग चावल. So that is perfect substitute for one another. Or if you go to a fruit market and there you see 15 fruit sellers, fruit vendors, they are sitting together and they all are selling Kashmiri apples. So उसमें कोई अंतर थोड़ी है कश्मीरी एप्पल्स में. हाँ, हो सकता है किसी का थोड़ा खराब हो, किसी का ज्यादा फ्रेश हो, but then Kashmiri apples will be Kashmiri apples. So perfect homogeneous substitute of one another. ठीक है, that is homogeneous product. Differentiated product के केस में मैं बोल रहा हूं कि product are close substitute but they are not perfect substitute. मतलब इसका नाम डिफरेंशिएटेड इसीलिए रखा है बिकॉज आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, on the basis of brand, on the basis of packaging, on the basis of design, on the basis of quality, on the basis of conditions which are surrounding the market. So product differentiation is the key. Close but not perfect substitute, that is differentiated product. And then we have exclusive product. Exclusive यानी उसके अलावा कोई और बेचता ही नहीं है. Now अगर homogeneous product का बात करें तो perfect competition जो है homogeneous product बेचता है. ठीक है, firms under perfect competition they sell homogeneous product. Perfect identical substitute. क्या perfect competition real life में exist करता है? जी नहीं. reality में real life में perfect competition exist नहीं करता है, but to some extent अगर आप बोलो तो agricultural products जो होते हैं उसको फिर भी आप काइंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में बोल सकते हो एक पर्टिकुलर रूरल एरिया के अंदर में, कि अगर वहां पे 20 फार्मर्स है और 20 फार्मर एक टाइप का क्रॉप उगा रहे तो इन दैट सेंस यू कैन से कि हाँ भाई परफेक्ट कंपटीशन है. बट रियल वर्ल्ड सिनारियो में परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, टॉकिंग अबाउट, अच्छा परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है, साथ ही साथ ओलिगोपोली मार्केट भी होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है. फ्यू सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट. नाउ ओलिगोपोली मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बेचता है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेचता है. ओलिगोपोली में भी कैटेगरी है. अगर कोई ओलिगोपोली मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहा है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत फ्यू सेलर्स है एंड पेट्रोलियम में एक जैसे ही तो पेट्रोल मिलेंगे ना. आप 5 अलग अलग ब्रांड में अगर चल जाओ, भारत पेट्रोलियम में चल जाओ, इंडियन ऑयल में चल जाओ, चाहे आप रिलायंस में चल जाओ यानी जियो में चल जाओ, चाहे आप एचपी में चल जाओ, चाहे आप इंद्रप्रस्थ में चल जाओ, सब जगह पेट्रोलियम तो एक जैसा ही मिलेगा ना. ऐसा तो नहीं कहीं पे रोज फ्लेवर का पेट्रोलियम मिल रहा है, कहीं जैस्मिन फ्लेवर का मिल रहा है, कहीं लैवेंडर फ्लेवर का मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना. सो दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट अंडर ओलिगोपोली एंड उस टाइप के ओलिगोपोली को हम लोग प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं. ठीक है, प्योर ओलिगोपोली. लेकिन अगर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहा हो, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब आप कार्स का ही एग्जांपल ले लो, कार में कितने ही ब्रांड होंगे, गिन चुन के 5 या 6 इंडियन ब्रांड, उससे ज्यादा क्या ही होंगे. मारुति है, फिर आपका टाटा है, फिर आपका महिंद्रा है, मेरे को तो इंडियन के 3 ही नाम याद आ रहे हैं. ठीक है, सो फ्यू सेलर्स. Hyundai देखा जाए तो जापानीज ब्रांड हो गया. सो यहां पे भी फ्यू सेलर्स है, बट देन आप एक कार, चाहे आप महिंद्रा का कार ले लो, चाहे आप मारुति का कार ले लो, या चाहे आप टाटा का कार ले लो, कार तो कार ही है, ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए यूज करना है. सो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर, बट देन यू कैन डिफरेंशिएट टाटा कार विद महिंद्रा कार एंड विद दैट ऑफ मारुति सुजुकी का कार on the basis of design, size, color, brand, the benefits which are associated with the product, etc. So अगर ओलिगोपोली मार्केट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली बोलेंगे. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर इन योर माइंड. If oligopoly market is selling homogeneous product, pure oligopoly. If oligopoly market is selling differentiated product, differentiated oligopoly. And talking about exclusive product, exclusive में कौन आएगा? मोनोपोली आ जाएगा, इंडियन रेलवे, उसके अलावा और कोई सर्विस नहीं देता है रेलवे का गवर्नमेंट के अलावा. एंड अगर आप मोनोप्सनी को भी देखोगे तो वो भी एक्सक्लूसिव में ही आता है. अगेन इंडियन गवर्नमेंट ही ले लो, जितना भी एम्यूनिशन है या आर्टिलरीज है या आर्मामेंट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट जो भी है, गवर्नमेंट ही परचेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्री, और किसी को अलाउड नहीं है. आप किसी प्राइवेट सेक्टर को टैंक्स खरीदते हुए या एयर फाइटर जेट्स खरीदते हुए नहीं देखोगे. ठीक है, इट इज इंडियन गवर्नमेंट दैट परचेजेस. सो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट. आई होप दैट इज क्लियर. कमिंग टू थर्ड डिटर्मिनेंट, दैट इज नॉलेज अबाउट मार्केट. नाउ नॉलेज अबाउट मार्केट को भी आप 3 हिस्सा में डिवाइड कर लोगे. एक तो होगा परफेक्ट नॉलेज, सब कुछ पता है मार्केट के बारे में. एक होगा पार्शियल नॉलेज, कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ नहीं पता है. और एक होगा एब्सोल्युटली नो नॉलेज, कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में.
अगर परफेक्ट नॉलेज का बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में दोनों बायर्स एंड सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है, पूरा कंप्लीट नॉलेज होता है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। एंड अनदर इज ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में भी सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है एक दूसरे के बारे में, राइवल फर्म के बारे में, कि वो कितना में उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसका कितना प्रॉफिट बन रहा है, वगैरह वगैरह। एंड दैट इज व्हाई ओलिगोपोली मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस या क्लोज कंपटीशन है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट पार्शियल नॉलेज, पार्शियल मींस थोड़ा बहुत नॉलेज, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या आप बोल तो सकते हो कि हाँ ये ब्रांड ऑफ कार उस ब्रांड ऑफ कार से थोड़ा अलग है, ये कॉस्मेटिक उस कॉस्मेटिक से अलग है, ये फूड आइटम इस फूड आइटम से अलग है, बट मतलब अलग है किस किस बेसिस में अलग है, आप कुछ कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप जैसे मोबाइल फोन ले लो, अब सैमसंग मोबाइल फोन आईफोन के साथ अलग है। अगर मैं पूछूं कि आईफोन इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों चार्ज करते हो, आप बोलोगे पता नहीं, शायद ब्रांड बहुत अच्छा है इसीलिए। सो वी डोंट हैव a complete knowledge about why different firms are charging different prices. Maybe they are able to justify or they are able to persuade their customer in a way that it creates a brand preference among consumers. Consumers पसंद करने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को and they get attached to the brand. And that is why they are ready to pay premium than the other competing brand in monopolistic market structure. So because of the partial knowledge, आधा अधूरा knowledge that we have. And talking about absolutely no knowledge, that is again monopoly and monopsony में absolutely no knowledge। अब no knowledge की वजह से ही मोनोपोली मार्केट या इंडियन रेलवे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी प्रैक्टिस करता है कि सेम सर्विस के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। जैसे कि अगर आप बच्चों का, ठीक है, टॉडलर्स का टिकट कराओगे तो हाफ प्राइस पड़ता है, अगर आप अडल्ट का कराते हो एक अलग प्राइस पड़ता है, सीनियर सिटीजन का अलग प्राइस पड़ता है, कोटा में कराते हो अलग प्राइस पड़ता है, तत्काल में कराते हो अलग प्राइस पड़ता है, वीआईपी कोटा में जाओगे तो अलग प्राइस पड़ेगा। सो सेम बर्थ के लिए सेम सर्विस के लिए गवर्नमेंट अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा है। क्यों कर पा रहा है? बिकॉज वी हैव नो नॉलेज अबाउट इट, इनकम्प्लीट नॉलेज, ठीक है। Talking about next point, this is very important. I have often seen kids getting confused in this particular point कि इसका implication क्या है। Freedom of entry and exit. Either you are allowed to enter into the market as a seller or there is a restricted entry into the industry. So इसको दो हिस्सा में तोड़ना होगा, या तो freedom of entry exit है या तो restricted entry है कि कोई और आ नहीं सकता है। Talking about freedom of entry and exit, तो दो market structure में freedom of entry exit है, एक तो perfect competition है एंड दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री का एक कंडीशन है कि आप सेम ब्रांड नेम के साथ नहीं आ सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है। यू हैव टू कम अप विद योर ओन ब्रांड नेम एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रेजेंस इन द मार्केट। You cannot copy somebody else's brand and try to invade into the industry. Not possible. ठीक है। And talking about restricted entry, oligopoly में restricted entry है, monopoly में restricted entry है, monopsony में restricted entry है, यानी जितने sellers है या जितने buyer है उनके अलावा और कोई enter नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका implication क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का implication है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अलाउ करता है नए फर्म्स को एंटर करने का, अगर शॉर्ट रन में वो इंडस्ट्री में कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होगा एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है, तो नए फर्म्स उस अब नॉर्मल प्रॉफिट को देख के इंटरेस्टेड होके, अट्रैक्ट होके इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, राइट। जैसे इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट में और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, और जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे मार्केट के ऊपर जो पकड़ होता है एक एक फर्म का, कैप्चर जो होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा कंपेटिटर्स के बीच में। एंड धीरे धीरे क्योंकि इतने ज्यादा सप्लायर्स आ जाएंगे, आपने मार्केट मैकेनिज्म में भी किया था, इफ यू रिमेंबर दैट, सप्लाई अगर बढ़ते जाएगा तो एक्सेस सप्लाई की वजह से, अनसोल्ड सरप्लस की वजह से प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो धीरे धीरे क्या होगा, जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्राइस ड्रॉप होते 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 सारे अब नॉर्मल प्रॉफिट को वाइप आउट करके नॉर्मल प्रॉफिट पे इंडस्ट्री आ जाएगा। सो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का इंप्लीकेशन ये है कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएगा, क्योंकि एनी फर्म दैट इज अर्निंग अब नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन will attract the new sellers to join the industry. They are going to enter, the market share is going to increase and prices are going to come down and wiping out the abnormal profit, and each firm will end up earning normal profit only in the long run. साथ ही साथ फ्री एग्जिट का इंप्लीकेशन ये है कि अगर कोई फर्म क्विट करके छोड़ के जा सकता है इंडस्ट्री को, तो इट विल इंश्योर दैट कोई भी फर्म
लॉन्ग रन में लॉसेस ना इनकर कर रहा हो, क्योंकि अगर शॉर्ट रन में अभी ही लॉस हो रहा है तो इट इज एन इंडिकेशन कि आप लॉन्ग रन में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे जब और कंपेटिटर्स आएगा तो बोल के वो शॉर्ट रन में अपना बोरिया बिस्तरा बांध के टाटा बाय बाय करके क्विट कर देगा इंडस्ट्री को, ठीक है। फ्री एंट्री विल इंश्योर नो abnormal profit in the long run, normal profit only. Free exit will ensure that there are no losses in the long run. I hope that is clear. And talking about restricted entry, अगर restricted entry है तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस तीनों में से कुछ भी इनकर कर सकता है लॉन्ग रन में, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस। नाउ या तो फर्म प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते हैं। सो इसको आप दो हिस्सा में तोड़ोगे, या तो फर्म प्राइस टेकर है या तो फर्म प्राइस मेकर है। टेकर का बात करें तो सिर्फ एक इंडस्ट्री, एक मार्केट स्ट्रक्चर टेकर में आता है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। वो भी परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ इंडिविजुअल फर्म टेकर है। इंडस्ट्री पूरा मिलके परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर है, ठीक है। इंडस्ट्री एक साथ मिलके प्राइस सेट करता है, डिसाइड करता है, बट इंडिविजुअल फर्म इज अ टेकर। उसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलो, ओलिगोपोलिस्टिक बोलो या मोनोपोली बोलो, मोनोप्सनी बोलो, सारे प्राइस मेकर्स हैं, सब प्राइस सेट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो समवेयर बिटवीन टेकर एंड मेकर है, समवेयर बीच में है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को अपने राइवल फर्म का जो भी एक्टिविटी है या जो भी चल रहा है, मार्केट स्ट्रैटेजी है, उनको ट्रैक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप अपने राइवल फर्म से बहुत ज्यादा हेल हेवन डिफरेंस का प्राइस चार्ज कर सकते हो। यू हैव टू कीप एन आई, यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन व्हाट अदर्स आर चार्जिंग। बट क्योंकि यू आर अ डिफरेंट ब्रांड, and on the basis of your brand, if you are able to justify that why your brand is better than the other competing brand, that gives you the leverage. Leverage means advantage of charging different from what other competitors are charging. So that is how it justifies monopolistic market as price maker. Initially हम लोग बोलते they are somewhere between maker and taker because they also have to consider what rival firms are charging, but because firms under monopolistic competition are making unique product, that gives them the power to charge different from what others are charging, and that is why they become price maker. So they are also price maker. ठीक है, I hope that is clear. चलिए अब शुरू करते हैं एक एक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ टेबल भी बना दिया है कि कौन से मार्केट में किस टाइप का प्रोडक्ट, प्राइस कंट्रोल, एंट्री एग्जिट कैसा है वगैरह, आप देख लीजिए। ये नोट्स ले लीजिए बाबू, बहुत काम आएगा, ठीक है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा से, सो प्लीज टेक इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, हमने क्या क्या कीवर्ड सीखा। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, जहां पे प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा एंड जहां पे इंडिविजुअल फर्म का प्राइस इंफ्लुएंस नेग्लिजिबल है। एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस को इंफ्लुएंस नहीं कर सकता है, ओइंग टू द फैक्ट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बायर्स एंड सेलर्स आर एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा हाई है। एंड परफेक्ट कंपटीशन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। आई होप आपको डायग्राम का लॉजिक समझ में आ रहा होगा, दैट व्हाई प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज सेम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इफ यू रिमेंबर, रेवेन्यू वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, ड्यू टू गिवन प्राइसेस, ठीक है। डू नॉट राइट कांस्टेंट प्राइसेस, गिवन प्राइसेस। प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है, प्राइसेस चेंज हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में अगर इंडस्ट्री में चेंज है। इंडिविजुअल सेलर्स को या फर्म्स को प्राइसेस गिवन है। Use the keyword given, not constant, ठीक है। And that is why it is a horizontal straight line parallel to x-axis depicting that price, AR and MR are same, ठीक है। Elasticity के terms में बात करें तो हमने किया भी elasticity में that this is called perfectly elastic, right? Perfectly elastic demand, where sellers can sell everything at a particular price, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा भी प्राइस को बढ़ाया तो बायर्स एकदम नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं लेगा। और अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ाया तो डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सेलर्स खुद संभाल नहीं पाएगा, उस डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाई इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी ओवर हियर, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। फीचर्स में आपको खाली इंप्लीकेशन ही देना है। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का इंप्लीकेशन है कि इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर है। फर्म, ये जो फर्म आप देख रहे हो ये इंडिविजुअल है, ठीक है। फर्म मींस इंडिविजुअल।
इंडस्ट्री का बात करें अगर परफेक्ट कंपटीशन में, तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर है बट इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर है. सो इंप्लीकेशन होगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का कि इंडिविजुअल फर्म आर प्राइस टेकर्स इंस्टेड ऑफ प्राइस मेकर. दैट मींस नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, नीदर इंडिविजुअल फर्म नॉर इंडिविजुअल बायर. ठीक है, अंडर देयर गिवन कैपेसिटी. चलिए आगे बढ़ते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी मैंने आपको बताया होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होगा, दे आर परफेक्ट आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर. इसका इंप्लीकेशन ये है कि कोई भी राइवल सेलर अपने दूसरे सेलर से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रूट मार्केट में जा रहे हो, 15 वेंडर एक साथ बैठे हैं एंड सारे कश्मीरी एप्पल बेच रहे हैं, तो आप देखोगे सारे एक ही प्राइस पे बेच रहे होंगे. अब कोई 150 में बेच रहा है और कोई बोलेगा मैं 180 में बेचूंगा, कोई उससे खरीदेगा नहीं जाके, फिर 150 वाला से खरीद लेगा जाके. ठीक है, सो होमोजीनियस प्रोडक्ट का इंप्लीकेशन हुआ कि एक जैसा प्राइस ही एग्जिस्ट करेगा, यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिस्ट, क्योंकि सारे प्रोडक्ट आइडेंटिकल है. ऑल फर्म्स आर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट and therefore the demand curve is perfectly elastic. In other words, that there exists a uniform price for the product. ठीक है, एक जैसा प्राइस ही एग्जिस्ट करेगा मार्केट में फॉर द प्रोडक्ट. चलिए टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फीचर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. यहां पे नए फर्म्स आर allowed to enter the industry and existing firms whenever they desire they are also free to quit the industry. Cease production, they are free to cease means stop production and quit the industry. This would ensure that कोई भी firm long run में abnormal profit ना कमाए. Free entry का मतलब हो जाएगा that no abnormal profit in long run, सेबिकोलोन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्म कमा पाएंगे लॉन्ग रन में. एंड फ्री एग्जिट का इंप्लीकेशन होगा दैट नो लॉसेस, कोई नुकसान नहीं होगा इन लॉन्ग रन, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही फर्म क्लोज डाउन करके क्विट कर देगा इंडस्ट्री को. ठीक है, न्यू फर्म्स कैन फ्रीली एंटर, एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन एग्जिट एनी टाइम विदाउट रिस्ट्रिक्शन, एंश्योर्स फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवेबिलिटी. मोबिलिटी मींस मूवेबिलिटी, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक ऑक्यूपेशन से यानी एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में. सो फर्म यहां पे कभी भी एडिशनल फैक्टर्स को परचेस में मतलब एडवांस में परचेस करके स्टॉक बना के नहीं रखेगा. एज एंड व्हेन डिमांड अराइज होगा मार्केट में प्रोडक्ट का, तुरंत फैक्टर्स को मंगवा के प्रोडक्शन बना के प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई बढ़ाया जाएगा. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, क्योंकि फैक्टर्स मूव कर सकते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, देयर इज नो रूम, देयर इज नो स्कोप फॉर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन. ना ओवर प्रोडक्शन हो सकता है ना अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब ना ही एक्सेस डिमांड होगा ना ही एक्सेस सप्लाई होगा. एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, प्राइस चेंज नहीं होता है, यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिस्ट. ठीक है, फर्म कैन एडजस्ट सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड दैट इज व्हाई अगेन इसका भी इंप्लीकेशन होगा यूनिफॉर्म प्राइस. ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिस्ट. परफेक्ट नॉलेज, बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ही पता है. सेलर्स को पता है कि राइवल फर्म कितना में बेच रहा है अपना प्रोडक्ट को, बायर को पता है कि बाकी सारे कंपेटिटर्स किस प्राइस में दे रहे हैं. सो नोबडी कैन चार्ज मोर देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. एक जैसा प्राइस ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है, नो सेलर कैन ओवरचार्ज एंड फर्म्स हैव इक्वल एक्सेस टू द प्रोडक्शन इनपुट, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर एज वेल. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग प्रमोशन करने में लगाते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी है, कूपन्स है, डिस्काउंट है, वाउचर्स है, एटसेट्रा. सेल्स प्रमोशन में जो भी एक्सपेंसेस आता है उसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करने का जरूरत नहीं है. आप किसी सब्जी वाले को देखें, उसका इश्तिहार न्यूज़पेपर में आते हुए कि हमारी सब्जी सबसे ताजी, हमसे ही आके खरीदिए, या किसी भी यूज एंड थ्रो पेन को कभी आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट करते हुए, यूज एंड थ्रो चले एकदम मक्खन जैसे, ऐसा नहीं होता है, राइट. सो कोई भी फर्म, कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, क्योंकि बाकी सारे कंपेटिटर्स जो है एक जैसा प्रोडक्ट भी तो बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. सो indulging into selling cost, that is promotional expenditure, it is useless, it is of no sense. ठीक है, so there is no need for advertisement or marketing over here.
बिकॉज प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी होमोजीनियस है, सो कंज्यूमर्स डू नॉट नीड पर्सुएशन, nobody has to convince them, therefore selling costs are irrelevant. चलिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मार्केट पे आते हैं, दैट इज मोनोपोली मार्केट. नाउ मोनोपोली, मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर. दिस इज अ मार्केट टाइप इन विच देयर इज जस्ट सिंगल सेलर, एक ही सेलर है, उसको मोनोपोली मार्केट बोलेंगे. एंड वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है एक्सक्लूसिव है, उसके अलावा और नहीं मिल रहा है. हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट के कुछ डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट हो, जैसे अगर रेलवे का मैं डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट का बात करूं तो रेलवे का डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट वुड बी एयरवे. सो या तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ट्रैवलिंग का बात कर रहे हैं, रेलवे बोलो, एयरवे बोलो, रोडवे बोलो, तीनों में ही ट्रैवलिंग होगा. बट एयरवेज या तो बहुत एक्सपेंसिव है, रोडवेज बहुत इनकन्वीनियंट है जब आपको बहुत लंबे जर्नी के लिए जाना है. सो बेस्ट चॉइस वुड बी रेलवे, एंड दैट इज हाउ इट हैज अ मोनोपोली ओवर द मार्केट. ठीक है. So monopoly is a market structure in which there is a single firm and is the sole producer of product with no close substitute. Example Indian Railway, ठीक है, which is operated by government. Now डायग्राम में आपको बाद में समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है. सबसे पहले फीचर्स पे बात करते हैं. सिंगल सेलर, एक ही सेलर है मोनोपोली में, देख लीजिए आप. इसका इंप्लीकेशन होगा ये लाइन, जो सेकंड लाइन आपका लिखा हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे अक्सर इसको लिखना भूल जाते हैं. आपसे मैं अगर पूछूं कि फर्म और इंडस्ट्री में अंतर क्या है, तो आप बोलोगे फर्म इज इंडिविजुअल, एक, राइट. एंड इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप, इट्स अ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कंपीटिंग फर्म्स. बहुत सारे फर्म्स को जोड़ के इंडस्ट्री बनता है. क्योंकि मोनोपोली इंडस्ट्री में, मोनोपोली मार्केट में एक सेलर है, सिंगल सेलर है, तो वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है. एंड दैट इज वाई ये सेकंड लाइन लिखा है, दैट डिस्टिंक्शन मींस द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है. मतलब फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज है अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, बिकॉज देयर इज सिंगल सेलर. प्लीज यूज दिस लाइन एज योर इंप्लीकेशन. ठीक है. मेनी बायर्स एग्जिस्ट, बट देन कोई भी इंडिविजुअल बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. सेकेंड फीचर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. यहाँ पे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है. अगर है भी तो या तो मैंने जो आपको बोला रेलवे का सब्स्टिट्यूट एयरवे या तो बहुत एक्सपेंसिव है, या तो रोडवेज बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट है. ठीक है. इसके अलावा बैरियर्स टू एंट्री, मतलब कोई भी नए फर्म्स एंटर नहीं कर सकते इंडस्ट्री में. किस किस टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं? या तो लीगल रिस्ट्रिक्शन है, आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, या तो इकोनॉमिक बैरियर है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, उतना पैसा है नहीं लोग के पास कि दूसरा रेलवे शुरू कर दे, या तो स्ट्रेटेजिक बैरियर्स होगा, कार्टल यानी ग्रुपिज्म. ऑलरेडी सरकार ने अपना एक आपसी भाईचारा बना के रखा हुआ है, सारे सरकार का, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें और कोई एंटर नहीं कर सकता है प्राइवेट कंपनी. ठीक है. So since entry is restricted, monopolist can earn abnormal profit in the long run. वो लोग abnormal profit, normal profit या losses भी incur कर सकता है लॉन्ग रन में. ठीक है. प्राइस मेकर आई थिंक तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंगल सेलर है तो वो कुछ भी अपना खुद का प्राइस सेट कर सकता है. दे कैन मेक देयर ओन प्राइस, सो दे आर कॉल्ड प्राइस सेटर्स और प्राइस मेकर्स एज वेल. फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस कुड बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एज वेल. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना. सो फर्म सेम प्रोडक्ट के लिए या सेम सर्विस के लिए अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो इट इज द एक्ट ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट from the different set of consumers. That is price discrimination. क्योंकि मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर है, तो उसके पास पूरा कंट्रोल है मार्केट प्राइस के ऊपर. वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको किस कंज्यूमर से कितना प्राइस चार्ज करना है, किस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर से कितना प्राइस चार्ज करना है. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द डायग्राम, आप अपने ब्रेन को रेवेन्यू में लेके जाओ. आपको याद है वहां पे आपने पढ़ा था इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट. एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने आपको बताया था दैट अंडर इम्परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट, बी इट मोनोपोली और बी इट मोनोपोलिस्टिक, इफ दे वांट टू सेल मोर, अगर उन्हें ज्यादा बेचना है अपना प्रोडक्ट का, दे शुड रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर. ठीक है. दे शुड रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर. एंड इसीलिए देखिए आप, प्राइस जब कम हो रहा है तब डिमांड बढ़ रहा है. And that is why their demand is downward sloping. ठीक है. The demand curve is downward sloping. AR curve और demand curve same होता है. क्यों? AR itself is a demand curve. क्यों? क्योंकि we know that average revenue is equal to price. And demand किसका relation बताता है? Demand price and quantity का relation बताता है. And क्योंकि price ही firm के अलग अलग level of AR है,
तो बोल के एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही डिमांड कर्व भी बोला जाता है, ठीक है। सो आई होप पहला रीजन तो क्लियर है आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज फर्म विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर। नाउ टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी, मैंने यहां लिखा है ईडी लेस देन 1। इसका मतलब इलास्टिसिटी जो हो गया वो हुआ रिलेटिवली इनइलास्टिक, राइट, या लेस इलास्टिक। आपको इसको समझना है, आप अपने ब्रेन को इलास्टिसिटी चैप्टर में लेके जाइए, ठीक है। वहां हमने किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। पहला पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, याद आ रहा है। उसमें हमने सीखा था अगर कोई प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तो कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी इलास्टिक डिमांड होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी प्राइस चेंज होगा तो कंज्यूमर्स तुरंत कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे। बट वहीं कोई प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो वहां पे डिमांड इनइलास्टिक होता है, क्योंकि फिर नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइसेस कंज्यूमर को लेना ही पड़ेगा। हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा अगर चेंज हो जाए तो डिमांड थोड़ा सा ही चेंज करे वो लोग, बट चेंज करेगा, दे विल बी लेस सेंसिटिव टू द प्राइस, सो इनइलास्टिक डिमांड। सो यहां पे रेलवे में मोनोपोली मार्केट में देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक पॉइंट है, राइट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एंड बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट जो हमारा इलास्टिसिटी है इट इज लेस देन 1, इट इज इनइलास्टिक, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अगर आपको समझ आ रहा है देन प्लीज थोड़ा आप भी मेहनत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट्स लाइक अ ब्लेंड, ये क्वेश्चन भी आया था इस बार के बोर्ड एग्जाम में, दैट जस्टिफाई मोनोपोलिस्टिक मार्केट एज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। नाउ सी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के सिमिलैरिटीज का अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन को अगर उठाऊं तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। परफेक्ट कंपटीशन जितने लार्ज नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन जितने लार्ज नहीं है, फेयरली लार्ज है। प्लीज यूज द कीवर्ड फेयरली लार्ज, नॉट इनफाइनाइटली लार्ज, जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, फेयरली लार्ज। दैट इज व्हाई इट इज लाइक परफेक्ट कंपटीशन। एंड टॉकिंग अबाउट अगर मोनोपोली मार्केट का मैं बात करूं सिमिलैरिटी का इसमें, तो जस्ट लाइक मोनोपोली मार्केट ये लोग भी अपना यूनिक प्राइस चार्ज कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो चार्ज prices other than what competitors are charging, but not with a very much difference, not with a very huge difference, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा और प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी कंज्यूमर को सिमिलैरिटी पता चल गया कि मेरे प्रोडक्ट का कोई और कंपेटिटर भी है जो उसी के जैसा प्रोडक्ट, मेरे जैसा ही प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो मेरा कंज्यूमर तुरंत शिफ्ट कर जाएगा मेरे कंपेटिटर के पास। एंड दैट इज व्हाट जस्टिफाइज मोनोपोलिस्टिक मार्केट एज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन, ठीक है। लाइक परफेक्ट कंपटीशन इट हैज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, and like monopoly market it can charge different from what others are charging, so they are also price makers, monopolistic are also price maker, ठीक है। so meaning आप पढ़ लीजिए क्या है, monopolistic market is a structure where there are many sellers, large number of sellers, each selling differentiated product, very important, यहां पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है differentiated है। differentiated का मतलब हो गया कि differentiated product means कि close तो है but नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट है बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी होमोजीनियस नहीं है, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दैट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर अदर, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। डायग्राम का अगर मैं बात करूं, सिंस मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर भी इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है, मतलब इनका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि इफ दे वांट टू सेल मोर दे शुड रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर, ठीक है। जितना प्राइस कम करेंगे उतना ज्यादा बेच पाएंगे आप अपने कंपेटिटर से। बट इलास्टिसिटी का अगर बात करूं तो आप देखो यहां ग्रेटर देन 1 लिखा है, मतलब कि दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक। क्यों मोनोपोली में रिलेटिवली इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट बोल के इनइलास्टिक डिमांड। यहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट भी तो है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, मतलब आपका कंपेटिटर राइवल फर्म भी है। तो अगर आप प्राइसेस को थोड़ा सा भी कट करोगे तो हो सकता है उसके कस्टमर छोड़ के आपके पास आ जाए, या अगर आप प्राइसेस थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा कस्टमर बेस आपको छोड़ के आपके राइवल फर्म के पास चल जाए। सो योर कंज्यूमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव एंड दैट इज व्हाई इट लीड्स टू इलास्टिक डिमांड, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक या मोर इलास्टिक। इसका कारण रीजन क्या बनेगा? रीजन विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स।
चलिए फीचर्स का अगर बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, नंबर ऑफ सेलर्स आर फेयरली लार्ज एंड ईच फर्म कंट्रोल्स ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द मार्केट. फर्म्स कैन सेट देयर ओन प्राइसेस बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल इम्पैक्ट. ब्रांड के थ्रू लोग यहाँ नॉन प्राइस कंपटीशन हो रहा है यानी ब्रांड कंपटीशन हो रहा है बोल के एक एक फर्म अपना खुद का प्राइस भी चार्ज कर सकता है. बायर्स आर बहुत सारे, न्यूमरस, इंश्योरिंग नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज द की. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक फर्म के प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, कलर और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस व्हिच आर सराउंडिंग द मार्केट. ये पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, it is a key feature. Product are similar but not identical. They are close substitute, ठीक है. Not perfect substitute but close substitute. Differentiation can be on the basis of physical characteristic. Attribute means physical characteristic like size, quality, design, color, packaging, और sales condition के हिसाब से भी हो सकता है like branding, location, after sales service, etc. And because of this differentiation, firm has some monopoly power over pricing, and that justifies it as a blend. ये दोनों पॉइंट को जब आप मिला के एक्सप्लेन करते हो, दैट जस्टिफाइज मोनोपोलिस्टिक मार्केट एज अ ब्लेंड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन भी एंड मोनोपोली भी, ठीक है, एंड मोनोपोली भी. आई होप दैट इज क्लियर. टॉकिंग अबाउट थर्ड फीचर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. नए फर्म्स आराम से एंटर कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स क्विट भी कर सकते हैं. फ्री एंट्री इंश्योर करेगा कि कोई भी फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट ना कमा रहा हो लॉन्ग रन में. अगर कोई शॉर्ट रन में अबनॉर्मल प्रॉफिट कमा भी रहा है तो राइवल फर्म्स एंटर करेंगे, मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगा. जितना सप्लाई इंक्रीज होगा मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस उतना कम होते जाएगा एंड अबनॉर्मल प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा. इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट. एंड फ्री एग्जिट इंश्योर करेगा कि कोई भी लॉसेस ना इनकर करे लॉन्ग रन में, ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. सेलिंग कॉस्ट, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर्सपेक्टिव एज वेल, SAQ, ठीक है. सेलिंग कॉस्ट मतलब होता है प्रमोशनल एक्सपेंडिचर. यहां पे प्राइस वॉर नहीं होता है, यहां पे ब्रांड वॉर होता है. यानी एडवर्टाइजमेंट, हेवी एडवर्टाइजमेंट, अग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टेक्निक यानी डिस्काउंट्स, बेनिफिट, कूपन, ये सब देके हर एक ब्रांड दूसरे ब्रांड को आउट परफॉर्म करने का कोशिश करता है, उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करने का कोशिश करता है. दैट इज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है. फर्म्स कंपीट थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटी. सेलिंग कॉस्ट हेल्प फर्म्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, bring in customer like TV ads, social media marketing, celebrity endorsements, etc. And pricing decision, as I said, firms are somewhere between takers and makers, but it is not like they can charge whatever they feel like. They have to keep an eye onto their competitors, that what rival firms are charging. मेरे competitor क्या charge करे उसको भी देखना पड़ेगा. But at the same time, क्योंकि मैं एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहा हूं, हो सकता है मेरे कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा लॉयल है मेरे ब्रांड के प्रति. That gives me some power, leverage to charge different from what others are charging. And that is how I become, yeah, any firm in the monopolistic market becomes a price maker and not taker. ठीक है? It is somewhere between. Firms are not pure price takers, but not even absolute price makers. A firm's control over price depends on the brand loyalty and differentiation. Stronger customer preference will lead to higher ability to charge premium prices. But note, by making a unique product, firm gets power to choose their own price and therefore they are price makers. ठीक है. And non-price competition, it is just an extension of sales promotion वाला point है. आप देख लीजिए, खुद पढ़ लीजिए. Apart from price cutting, non-price competition is essential in monopolistic competition. That is by producing differentiated product and incurring expenditure on the advertisement. ठीक है. Now coming down to oligopoly market. Oligopoly market एक ऐसा market है जहां पे few sellers, बहुत कम sellers है, एंड बिकॉज बहुत ज्यादा फ्यू सेलर्स है बोल के डिग्री ऑफ कंपटीशन जो है, द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन दैट इज देयर बट अमंग द राइवल फर्म्स, इट इज वेरी इंटेंस, इट इज वेरी सिवियर, इट इज वेरी हाई. एंड इतना ज्यादा हाई कि हर एक फर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. दे आर को डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. दैट मीन्स एनी एक्शन that will be taken by a rival firm, कोई भी एक्शन अगर राइवल फर्म ने लिया, it will automatically call for a reaction by the rival firm. Like मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3 ब्रांड है, लाइक महिंद्रा, टाटा एंड मारुति. मारुति सुजुकी ने डिसाइड किया कि वो अपने कस्टमर को फ्री इंश्योरेंस देगा कार के ऊपर.
बाकी दोनों को सस्टेन करने के लिए सेम पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि मारुति सुजुकी उन सबको पछाड़ दे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर जियो फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो ने डिसाइड किया कि वो अपना प्राइस कट करेगा, ठीक है, कॉल चार्जेस जो है कट करेगा या इंटरनेट चार्जेस जो है वो कट कर देगा, डेटा पैक्स को, बाकी सबको भी करना पड़ेगा मार्केट में अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि कम सेलर्स है बोल के उन सब के बीच में जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा कट थ्रोट जिसको बोलते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला कंपटीशन, उस टाइप का कंपटीशन है, ठीक है। नाउ डायग्राम मैं लास्ट में समझाता हूं आपको कि क्यों है ऐसा, ठीक है। सबसे पहले फीचर्स आप देख लीजिए। इंटेंस कंपटीशन, सिंस देयर आर ओनली फ्यू राइवल फर्म्स, so each firm controls a very large market capture, market share, so firm compete aggressively, बहुत ज्यादा severe competition sometimes lead to price war as well, कि एक फर्म ने प्राइस काटा अपने आप को बचाने के लिए, सारे फर्म एक साथ प्राइस कट कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल, इफ मारुति ऑफर्स कार इंश्योरेंस, Hyundai may also do the same thing to be competitive. प्राइस मेकर है सारे फर्म यहाँ पे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि फ्यू सेलर्स है, फ्यू फर्म्स है, तो दैट गिव्स देम द लिबर्टी ऑफ मेकिंग, सेटिंग अप देयर ओन प्राइस। हालांकि वो लोग एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके प्राइस डिसाइड करते हैं, अपना प्राइस सेगमेंट, स्पेशली प्योर ओलिगोपॉली में, जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहा है, जैसे पेट्रोलियम के केस में अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर रीजन में हर एक पेट्रोल पंप में एक जैसा ही प्राइस रहेगा, चाहे फिर वो अलग अलग ब्रांड का ही क्यों ना हो, इंडियन ऑयल हो, चाहे एचपी हो, चाहे रिलायंस हो, या चाहे आपका भारत हो, ठीक है। हाँ, बट डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली में क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ब्रांड डिफरेंशिएशन है, तो राइवल फर्म अपना खुद का इंडिपेंडेंट प्राइसिंग भी चूज करता है, बट देन बाकी लोग नजर भी रखता है कि राइवल फर्म क्या प्राइस चार्ज करता है, क्योंकि उसने अगर कट कर दिया तो हमें भी मार्केट में अपने आप को बचाने के लिए प्राइस कट करना पड़ेगा, सेम रेंज ऑफ प्राइस में ही वो प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि फ्यू फर्म्स है बोल के हर एक फर्म एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है। यूज दिस लाइन इन योर आंसर दैट एनी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ राइवल फर्म विल कॉल फॉर अ रिएक्शन बाय अदर फर्म्स। एनी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ राइवल फर्म विल कॉल फॉर अ रिएक्शन बाय द अदर फर्म। प्लीज इसको यूज करिएगा। किसी ने प्राइस कट किया, किसी ने कोई एडेड बेनिफिट दिया अपने प्रोडक्ट के साथ, बाकी सारे फर्म्स भी उसको फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है। दैट इज इंटरडिपेंडेंस। फ्यू फॉर्म्स ऑलरेडी बता दिया क्या है, बैरियर्स टू एंट्री। नाउ कोई भी नए फर्म्स एंटर नहीं कर सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब हुआ, हमने कॉस्ट में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी लॉन्ग रन में क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं, ये लोग अपने आप को इतना जल्दी जल्दी एक्सपैंड करते जाते हैं, इतना जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करते जाते हैं, एंड दे बिकम सच जायंट फर्म्स कि इनके कॉस्ट को बीट करना किसी भी छोटे फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। नए फर्म मार्केट में आके इनको प्राइस में कंपीट ही नहीं कर सकते, इनको कॉस्ट में कंपीट ही नहीं कर सकते। ये लोग कुछ महीना के लिए लॉस इनकर करके भी सस्ता में भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं अगर किसी राइवल फर्म को मारना हो तो, ठीक है, जैसे जियो ने किया भी था। जियो ने कई टाइम तक पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को पछाड़ दिया था। जियो जब एंटर किया मार्केट में, आते ही साथ फ्री में सिम कार्ड्स बांटना शुरू किया, बिना कोई पैसा के डेटा पैक्स फ्री में दे रहा है, कॉल का फ्री में दे रहा है, तो बाकी सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री दे वर डेड, ठीक है। ऐसा होता है, या तो लीगल बैरियर हो सकता है, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा, कॉपीराइट नहीं मिलेगा, या तो हाई स्टार्टअप कॉस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना ज्यादा हाई होता है कि शायद कोई एंटर ही ना करना चाहे। सो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है बैरियर्स के जो कि प्रिजर्व करके रखते हैं ओलिगोपॉली को। कार्टल्स भी है, कार्टल यानी ग्रुपिज्म चलता है ओलिगोपॉली में भी, कार्टल यानी इन सारे राइवल फर्म्स का एक बोलते हैं ना माफियागिरी चलता है, कार्टल चलता है ग्रुपिज्म के। अगर कोई नया फर्म आएगा तो सीधा जो रिसोर्स सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर, उसको फोन करके बोल देगा अगर इस फर्म को तुम रॉ मटेरियल बेचेगा तो हम लोग तुमसे लेना बंद कर देंगे। दिस काइंड ऑफ behavior also operates in oligopoly and that preserves oligopoly, does not allow any new firm to enter the industry, ठीक है। now talking about diagram, अगर आप ध्यान से डायग्राम देखो, ओलिगोपोली मार्केट के ग्राफ को या तो किंक्ड डिमांड कर्व बोलते हैं या तो इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व बोलते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट वो होता है जो कि डिटरमाइन हो सकता है, एंड इनडिटर्मिनेंट क्या होगा, जो ठीक से डिटरमाइन ना हो। नाउ इसको किंक्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपरी हिस्सा जो है, जो अपर पैनल है, वो इलास्टिक है, फ्लैटर है, सो इलास्टिक है, और नीचे वाला हिस्सा इन इलास्टिक है, ठीक है। चलिए मैं आपको
बना के ही समझाता हूं कि क्यों है ऐसा। y axis origin, x axis quantity एंड प्राइस। ठीक है, जो अपर पैनल है वो समवेयर इलास्टिक है एंड जो लोअर पैनल है वो समवेयर इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है। और ये जो बीच में ज्वाइनिंग पॉइंट आया इन दोनों का, मान लीजिए यही प्राइस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, P0 एंड क्वांटिटी में मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं यहां से Q0। इसको हम लोग किंक बोलेंगे। ठीक है, के किंक बोलेंगे। नाउ ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक होने का वजह एंड नीचे वाला हिस्सा इनइलास्टिक होने का वजह ये है, इट इज बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। फर्म बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा क्लोज कंपटीशन है। जैसा कि मैंने बोला कि एनी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ फर्म विल कॉल फॉर रिएक्शन बाय द राइवल फर्म। मतलब कोई भी एक फर्म ने अगर अकेले, एक फर्म ने अकेले सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ा लेता हूं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करता हूं, तो वो फर्म देखेगा कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली गिर गया। थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया पर डिमांड बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली गिर गया। क्यों? क्योंकि तुरंत उसके कस्टमर्स राइवल फर्म के पास चले जाएंगे, बाकी लोग के पास चले जाएंगे, क्योंकि इसको किल करने के लिए जिसने प्राइस बढ़ाया है बाकी सारे राइवल फर्म अपना प्राइस ही नहीं बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये तो मार्केट्स आउट। इसने अकेले ने प्राइस बढ़ाया, बाकी किसी ने प्राइस नहीं बढ़ाया, तो कस्टमर्स तो बाकी लोगों के पास शिफ्ट कर गए, तो इसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अपर पैनल इज लिटिल इलास्टिक। एंड टॉकिंग अबाउट द लोअर पैनल, व्हाई इज इट इनइलास्टिक? इट इज बिकॉज कि अगर कोई एक फर्म डिसाइड करता है कि चलो ज्यादा बेचने के लिए मैं प्राइस कट कर देता हूं, ठीक है, मैं प्राइस कट कर देता हूं, से P2 आई कट द प्राइस, रिड्यूस द प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस कट कर दूं, तो भी वो फर्म एक्सपीरियंस करेगा कि उसका जो डिमांड है बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, उसका डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए आप Q1 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि अगर एक भी फर्म प्राइस कट करेगा, एक्शन विल कॉल फॉर रिएक्शन। बाकी सारे राइवल फर्म्स डर जाएंगे कि इसने तो अपना प्राइस कट कर दिया सेल्स बढ़ाने के लिए, क्या होगा अगर हमने अगर प्राइस कम नहीं किया तो हमारे लोग छोड़ के, हमारे कस्टमर्स हमें छोड़ के दूसरे राइवल फर्म के पास चले जाएंगे। तो उस डर की वजह से बाकी सारे राइवल फर्म्स भी अपना प्राइस कट कर देंगे, तो इसका जो डिमांड होगा वो थोड़ा सा ही बढ़ पाएगा, तब तक ही वो ज्यादा बेच पाएगा जब तक बाकी फर्म्स इंडस्ट्री में अपने प्राइस को एडजस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने अगर प्राइस कट किया, मेरे साथ 4 और सेलर्स है, अब जैसे ही मैंने प्राइस कट किया वो 4 सेलर, मेरे जो राइवल सेलर है वो लोग तो डर जाएंगे, तो मैं तब तक ही ज्यादा बेच पाऊंगा जब तक वो लोग अपना प्राइस कट नहीं करे। वो लोग भी तुरंत तुरंत अपना प्राइस को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगा इन ऑर्डर टू सस्टेन इन द मार्केट, एंड दैट इज व्हाई नीचे वाला हिस्सा इनइलास्टिक बन जाता है। सो ये ना पूरा पूरी इलास्टिक है ना पूरा पूरी इनइलास्टिक है, ये दोनों का ब्लेंड है, एंड दैट इज व्हाई इसको इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व भी बोला जाता है या किंक्ड डिमांड कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। Indeterminate demand curve or king demand curve. The upper panel is elastic, lower panel is inelastic. So it is neither pura puri elastic nor pura puri inelastic. Indeterminate, cannot be determined. And coming to the last one, that was monopsony. Monopsony, mono means single and sony means buyer. So monopsony is a market where there exists a single buyer, एक ही buyer. ठीक है, उसका खाली मीनिंग कर लेना, फीचर्स वगैरह मैंने नोट्स में डाल दिया, आप खाली रीड कर लेना, हालांकि वो सिलेबस में है नहीं। ठीक है, so you can skip that out. And I think we are good to go with this. We complete our forms of market as well. कुछ बचा तो नहीं है। चलिए, with this we come to the end of the chapter and the entire microeconomic series. अगर आपको कोई भी question होगा, then please do leave a comment down below. I'm going to take that up. And I hope you are liking my video. If you genuinely are, then I'm requesting you, please support this channel by liking, sharing, subscribing, and sharing it with your friends. I'll see you from in my next video starting with macroeconomic series. अभी मैं थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करूंगा क्योंकि इंग्लिश काफी ज्यादा पीछे छूट गया है इकोनॉमिक्स कराते कराते, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू टेक अप मैक्रोइकोनॉमिक्स, उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।